हेलो टू एवरीवन। देखिए जो आज का क्वेश्चन है फूरियर सीरीज से है। तो देखिए इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मींस आपको फूरियर सीरीज फाइंड करनी है। फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ f(x) is x square from x lies between -pi to +pi and reduce pi square by 6 is 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square and so on। तो फूरियर सीरीज पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद में जो आपको प्रूव करना है उसको प्रूव करना है। आपका जो गिवन फंक्शन है ये इवन फंक्शन है बिकॉज f of x is x square and for even function is minus x square also plus x square, that means this one plus of fx, therefore x square is even function, then Fourier series, let the series f of x is equal to a0 plus summation from n to infinite term an cos of nx रहेगी। अब ये जो सीरीज है इसमें a0 और an को अपने को फाइंड करना है। तो a0 का वैल्यू 1/2 pi इंटीग्रल फ्रॉम -pi to +pi f of x dx रहता है and f(x) is given here because f of x is given x square and therefore a0 is equal to 1/2 pi -pi to +pi x square dx, and here x square is even function, this function is even, then this integral change into 1/2 pi twice the integral from 0 to pi x square dx, and now 1/pi integral of x square is x cube upon 3 and lower limit is 0 and upper limit is pi, then a0 is equal to 1/3 pi multiply pi cube minus 0 is equal to pi cube divided by 3 pi, and at last a0 is equal to pi square upon 3। तो इस तरह से बंदे पहले a0 का वैल्यू फाइंड कर लिया जिसको अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं pi square upon 3। दिस इज वैल्यू ऑफ a0। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ an and an is given by value of an is 1/pi integral from -pi to +pi fx multiply by cos of nx dx, and 1/pi -pi to +pi fx is x square and cos of nx dx. Again this is even function and therefore this integral change into twice the integral from 0 to pi x square cos of nx dx. Now we solve this integral taking x square as a first function and cos of nx as a second function. That means multiply of two functions here given. So we solve it by integral by parts. And an is equal to 2/pi integral of x square cos nx, x square, and integral of cos nx is sin of nx upon n minus derivative of x square is 2x and integral of cos nx is sin nx divided by n dx, a limit from 0 to pi. First we put pi here, then pi square sin of n pi, and sin n pi always 0 because sin of n pi is 0 and sin 0 always 0। तो लोअर एंड अपर लिमिट पे ये जो टर्म है x स्क्वायर sin x अपॉन n, ये दोनों ही लिमिट के लिए 0 हो जाएगी। दैट मींस अपने पास में इंटीग्रल वैल्यू जो बचेगी
is equal to 2 upon pi, and integral from 2x sine of nx upon n dx from 0 to pi, and साइन इज नेगेटिव। इस नेगेटिव को इसके साथ में अपन ने बाहर ले लिया और 2 upon n को भी इसके साथ बाहर ले लेते हैं, दैट मींस -4 upon n pi, और x sin x को इंटीग्रल करते हैं तो x sin nx का इंटीग्रल माइनस cos nx डिवाइड बाय n माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u x, और sin का इंटीग्रल यहाँ पे माइनस cos nx अपॉन n dx। लिमिट वापस 0 से पाई है आपके पास। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं, इस इंटीग्रल को भी पहले सॉल्व कर देते हैं, दैट मींस -4 अपॉन n पाई माइनस का x cos ऑफ nx डिवाइड बाय n, और माइनस से माइनस प्लस 1 अपॉन n, और इंटीग्रल ऑफ cos nx दैट मींस sin of nx डिवाइड बाय n, लिमिट 0 to पाई। अब देखो यहाँ पे वापस sin nx आया है तो पाई रखेंगे तब भी ये टर्म 0 होगी, और 0 रखने पर भी ये टर्म आपको 0 ही मिलनी है। तो अपने पास में जो an का वैल्यू आएगा, दैट मींस an वैल्यू इज -1 अपॉन n को भी अपन बाहर लेके आ जाते हैं, that means 4 upon n square multiply by pi and x cos nx and limit 0 to pi। ये टर्म अपने को दोनों ही बार 0 मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपर लिमिट अपन पाई रखते हैं तो पाई cos n पाई, और 0 पे ये टर्म 0 हो जाती है, दैट मींस 4 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई एंड पाई cos ऑफ n पाई अपने को मिलता है। पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाता है, तो an इज इक्वल टू 4 अपॉन n स्क्वायर एंड cos ऑफ n पाई, तो n इवन और ऑड होने पर यहाँ पे -1 की पावर n मिलता है, दैट मींस अपने पास में -1 की पावर n, दैट मींस n इक्वल टू 1 पर ये cos पाई होता है, तो cos पाई माइनस में आएगा अपने पास, और n का वैल्यू 2 होने पर cos 2 पाई 0 पे +1 आता है, दैट मींस अल्टरनेटिव साइन आएंगे, तो an का वैल्यू ये हो गया। तो अब अपना देखिए सीरीज क्या हो जाएगा, तो फूरियर सीरीज and therefore fx is equal to a0, value of a0 is pi square upon 3 plus an cos of nx, तो an का वैल्यू 4 upon n square minus 1 की पावर n cos of nx मिलता है। अब यहाँ पर अपन n का वैल्यू रखते हैं कंटिन्यूअसली, put n equal to 1 2 3 4 and so on, तो यहाँ से, और fx equal to fx is equal to given x square, then Fourier series of x square is equal to pi square upon 3, n equal to 1 रखेंगे तो cos x और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, that means -4 upon 1 square cos of x आएगा। फिर n equal to 2 रखा अपन ने, तो 2 रखने पर यहाँ से अपने पास में साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर, दैट मींस पॉजिटिव साइन, और cos ऑफ 2x मिलेगा, दैट मींस प्लस का 4 अपॉन n स्क्वायर cos ऑफ 2x। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो वापस आपको माइनस साइन, तो -1 अपॉन, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखा था और n इक्वल टू 3 रखा है, 3 का स्क्वायर और cos ऑफ 3x प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज मिलता है अपने को। अब इसके अंदर अगर अपन पुट x इज इक्वल टू पाई,
तो अपन पाई रखते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3, अगेन cos ऑफ पाई, ये cos x का वैल्यू पाई रखा तो cos ऑफ पाई है वो -1 होता है, तो माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर। x इक्वल टू पाई रखेंगे तो cos ऑफ 2 पाई प्लस 1 देगा, दैट मींस यहाँ पे प्लस का 4 अपॉन 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस अपन ने x इक्वल टू पाई रखा तो cos 3 पाई पे -1 आएगा, तो ये टर्म वापस कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव 4 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऑल टर्म पॉजिटिव मिलेंगे। पाई स्क्वायर अपॉन 3 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से देखिए पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सीरीज मिलेगी। अब यहां से हम इसको इसमें से लेस कर देते हैं, दैट मींस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड टेकिंग 4 कॉमन, then 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus and so on, ये कंटीन्यूअस सीरीज मिलेगी। और 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो देयरफॉर पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो पाई स्क्वायर अपॉन 6 का वैल्यू अपने को प्रूव करना था, उसको अपन ने सीरीज फॉर्म में प्रूव भी कर लिया, इसकी फूरियर सीरीज भी अपन ने प्राप्त कर ली। तो इस तरह से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से हो या एमएससी बीएससी को डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो फूरियर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है, जिसके क्वेश्चन कंपटीशन में भी भरमार रहती है, और आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में तो फूरियर और लैप्लास, ये दो चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस का पार्ट रहते हैं। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन जानने के लिए, सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।